اس کو اگر تکلیف ہوتی ہے تو پارٹی کے خلاف ہم نہیں ہیں، نہ ہمارا کوئی شخص۔ میں آج آپ کو دکھانا چاہتا ہوں کہ پنجاب میں کیوں نہیں ہوتا۔ میں نہیں بول رہا، وال اسٹریٹ جرنل ایک بہت بڑا جرنل ہے، بہت مستند جرنل ہے، اور وہ کیا بول رہا ہے میں پھر دکھانا چاہتا ہوں۔ چند دنوں پہلے میں نے دکھایا تھا اور اس کے بعد یہ واقعہ ہوا ہے، پھر دکھا رہا ہوں کہ آنکھیں کھولیں کہ پنجاب کے وزیر اعلیٰ کیا کہہ رہے ہیں، یہ وال اسٹریٹ جرنل کیا کہہ رہا ہے۔ میں اس کو دکھا رہا ہوں، آپ دیکھیے کہ وال اسٹریٹ جرنل میں اسامہ بن لادن کے اہم نائب کا یعنی عطیہ عبد الرحمان کا جو انکشاف ہے وہ کیا ہے، وہ یہ انکشاف ہے کہ انہوں نے جو اسامہ بن لادن کے کمپاؤنڈ سے جب اسے گرفتار کیا گیا تو کئی ڈاکومنٹس ملے تھے، اس میں ایک ڈاکومنٹس عطیہ عبد الرحمان جو اہم نائب تھے اسامہ بن لادن کے، انہوں نے کیا ڈاکومنٹس جو تھا اس میں کیا لکھا تھا، اس میں انہوں نے لکھا تھا کہ شہباز شریف چاہتے ہیں کہ تحریک طالبان پاکستان کے ساتھ ایگریمنٹ ہو کہ وہ پنجاب میں دہشت گردی نہ کرے چاہے پورے پاکستان میں کرے، اور اگر یہ ایگریمنٹ ہوتا ہے تو اس میں یقیناً ان لوگوں کو پنجاب کے اندر جن کی پناہ گاہیں ہیں دہشت گردی ہیں انہیں بھی تحفظ دیا جائے گا۔ یہ وہ وال اسٹریٹ کا خط ہے جو 5/5/2015 کا ہے، جس کو اسٹیبلش کیا بعد میں FCDS لانگ وار جرنل، اس کی بھی آپ کاپی دیکھیں۔ پھر آپ کا ٹریبیون نے بھی پاکستان کا، پھر ڈان نے بھی یہ خبر چلائی۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب پاکستان کا وزیر اعلیٰ خود کہہ رہا ہو اور عطیہ عبد الرحمان جو کہ نائب ہے اس کا، وہ لکھ رہا ہو کہ مجھ سے کہا ہے کہ جناب پنجاب میں آپ جو ہے وہ اس قسم کی ایکٹیویٹیز نہیں کریں، کیونکہ آپ کا پوائنٹ آف ویو اور ہمارا پوائنٹ آف ویو ایک ہے، ہم جو لڑ رہے ہیں، آپ جو لڑ رہے ہیں وہی ہم لڑ رہے ہیں۔ تو کیا تحریک طالبان جو پاکستان کے دیگر صوبوں میں غریبوں پاکستانیوں کو دہشت کا نشانہ بنا رہی ہے؟ شہباز شریف صاحب، کیا آپ کا بھی موٹیو وہی تھا جو یہ سٹیٹمنٹ آئی ہے؟ یہ میری نہیں ہے، جو چاہے نیٹ سے نکال سکتا ہے، جو چاہے ان اخبارات کو جو ہے وہ نوٹسز دے سکتا ہے، ان اخبارات نے کہا ہے، اور میں نے بار بار ریکویسٹ کی ہے چیف منسٹر پنجاب سے، آنر کی ہے، کال بھی کی ہے کہ پلیز ایکسپلین کریں کہ یہ جو عطیہ عبد الرحمان کا خط ان ڈاکومنٹ کے ساتھ پکڑا گیا ہے جس میں آپ کی یہ بات کہی گئی ہے کہ آپ ان سے ایک ایگریمنٹ چاہتے تھے کہ پنجاب کے اندر دہشت گردی نہ ہو پائے، پورے ملک میں ہو، یعنی پاکستان آپ کا نہیں ہے، نہیں ہے پاکستان آپ کا۔ آئیے، آپ نے جامعہ نعیمیہ میں بھی ایک اسپیچ کیا تھا، وہ بھی لائیو سناتا ہوں کہ اس میں آپ نے کیا کہا تھا، آئیے سنیے۔ پاکستان کے ساتھ سب سے بڑی زیادتی یہ ہے، سب سے بڑا ظلم یہ ہے کہ اس نے اغیار کے اشارے کے اوپر بے گناہ مسلمانوں کا خون کیا۔ آپ بندی اور اپنے پسندی نے اسی ایک نامراد جرنیل کے انتہائی غلط اقدامات کی وجہ سے اس نے جنم لیا۔ اگر طالبان کا یہ ان کا نقطہ نظر خیر ہے کہ ہم اغیار کی جو پاکستان کے اوپر تسلط اور ڈکٹیشن اب اس کے خلاف کب آ رہا ہے، تو پھر تو ان کو پنجاب میں یہ حرکتیں نہیں کرنی چاہیے۔ جی جنرل صاحب، جنرل احوان صاحب کیا کہیں گے؟ آپ کے سامنے یہ خبر بھی ہے اور آپ کے سامنے یہ اسٹیٹمنٹ بھی ہے، آپ اپنا پوائنٹ آف ویو دیجئے کہ آپ اس سے کیا سمجھتے ہیں سر؟ ڈاکٹر صاحب میرے خیال میں نے پہلے بھی اپنا ہی پوائنٹ آف ویو دیا تھا۔ میں ان کا وہ جو مائنڈ سیٹ ہے اس کو ایکسپلین کر رہا ہوں کہ یہ اس سوچ کے لوگ پنجاب میں حکومت کر رہے ہیں۔ میں یہ بتانے کی کوشش کر رہا تھا، یہ جریدے ہوں، آپ کسی امریکن جریدے کی یا وال اسٹریٹ جرنل کے بات کریں، کیا ملتان میں بہنے والا خون، واگا بارڈر پہ بہنے والا خون، اقبال پارک میں بہنے والا خون، اور کل چیرنگ کراس میں ہونے والے شہداء اور ان کا خون یہ پکار کے نہیں کہہ رہا کہ دہشت گرد پنجاب میں موجود ہیں اور ان کا کلا کما ہونا ضروری ہے؟ کیا اس کے بعد ہمیں کسی وال اسٹریٹ جرنل یا کسی ایک لفاظی کی ضرورت ہے یا اسٹیٹمنٹ کی؟
माइंड लेके बैठे हैं, ये फियर ऑफ रिट्रीब्यूशन के कैदी हैं, इसलिए ये मसलहत के मारे हुए लोग इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने से रिलक्टेंट हैं और उसकी सजा भुगत रहे हैं वो इनोसेंट लोग जिनकी जानें जा रही हैं। तो मैं इसी बात की निशानदेही कर रहा था कि जब माइंडसेट ऐसा बन जाए तो फिर उसका जज्बा पे लोग उतर आते हैं, और यही वजह है कि ये लोग एडिशनल फोर्सेस को तलब नहीं कर रहे। आपने ब्रेक पर जाने से पहले कहा था आर्टिकल 245, आप समझते हैं फेडरल गवर्नमेंट पंजाब की हुकूमत के खिलाफ आर्टिकल 245 नाफिज करके एडिशनल फोर्सेस को या आर्मी को तैनात कर देगी? ये डॉक्टर साहब ऐसा कभी नहीं होगा। 3 सूबों में ये हो चुका है, लेकिन इस चौथे सूबे में ये नहीं हो रहा, और जिसकी सजा अवाम पंजाब के शहरी भुगत रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि ये लोग इधर प्रेजेंट हैं। अगर प्रेजेंट ना होते तो ये लोग इतने बड़े 4 इंसिडेंट पंजाब में पिछले 1.5 साल में ना हुए होते। लेकिन इनको तो 9 साल से इनकी हुकूमत है, 9 साल में कोई दहशतगर्दी का वाकया पंजाब में नहीं हुआ। तो अगर ये इनका कहना है कि जी सब कुछ मैनेजेबल है और हमें किसी एडिशनल फोर्स की जरूरत नहीं, तो मैं इस माइंड सेट की अक्कासी कर रहा था कि ये लोगों का नेगेटिव माइंड सेट है। इनको दे शुड गेट द बुल बाय द हॉर्न, ये अप फ्रंट उसको फेस करें और लोगों को जानो माल का तहफ्फुज जो इनकी आईनी और हल्फिया जिम्मेदारी है उसको बजा लाने में मसलियत का शिकार न रहें। डॉक्टर साहब मैं यहाँ पे आपकी भी जिम्मेदारी है सर। हाँ, मैं फारूक साहब आपकी तरफ आता हूँ। जी डॉक्टर साहब क्या बोलते हैं? मुझे एक मौका दे। देखिए ये जहाँ तक देयर इज नो समथिंग एज ईगो, जब कौमी सलामती और आवाम की जानो माल की बात हो, एक तरफ ईगो हो कौमी सलामती और आवाम की जानो माल, सवाल भी पैदा होता है कि हम कोई ईगो की बात करें। देखिए आपकी बात सही है, मैं भी समझता हूँ कि फौज को थोड़ा सा आगे आना पड़ेगा। 2014 में क्या हुआ था डॉक्टर साहब, वो बजट थे कि हम तालिबान के साथ डायलॉग करेंगे, आपको पता है कैसे मामला चल रहे थे। लेकिन जब जिना टर्मिनल के ऊपर दहशतगर्दी का हमला हुआ तो क्या हुआ, जनरल राहिल शरीफ ने, पाकिस्तान आर्मी ने 15 जून का ऑपरेशन ज़रब लॉन्च किया। मैं समझता हूँ कल का जो चेरी क्रॉस का सानिया है ये भी वही चीज बनती है। अब इसके बाद तो और कोई गुंजाइश नहीं है। खुदा न खास्ता अब ये तो नहीं हम कहेंगे कि और भी सीनियर लोग जो है अगर कल को किसी और थाने में अल्लाह न करे वो शहीद हो जाए तो हम क्या उस वक्त इंतजार करेंगे? तो मेरा ख्याल है ये कल का सानिया टर्निंग पॉइंट है, और यही वजह है कि मेरा ख्याल है फौज ने शायद ये फैसला कर लिया है कि जनाब ईगो और नो ईगो, पॉलिटिकल कंपल्शन और नो पॉलिटिकल कंपल्शन, हमने पंजाब में जाना है। ठीक है, रेंजर्स लेड ऑपरेशन होगा, उसके सपोर्टिंग में पंजाब की काउंटर टेररिज्म फोर्स होगी, इंटेलिजेंस एजेंसीज होगी, और ये तमाम जाके ऑपरेट करेंगे। मैं दूसरी बात ये भी कह दूं पंजाब पुलिस के बारे में। देखिए डॉक्टर साहब, पंजाब पुलिस के इस वक्त स्टेट जो है वो ठीक नहीं है। उनके पंजाब पुलिस के जो आईजी साहब हैं और कुछ और सीनियर पुलिस अफसर, मॉडल टाउन केस में उनको इस्तगासा का जो फैसला आया है, अब उनको समन किया गया है एंटी टेररिज्म कोर्ट में, और अवामी तहरीक ने कहा कि जी इन लोगों को अब आप अपनी पोस्ट से फारग कर दे, क्योंकि ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे आ गया। तो एक ये सूरत हाल है, कल 2 सीनियर पुलिस अफसर वो शहीद हो गए। तो ये तो अब मैं नहीं समझता हूँ कि पंजाब पुलिस जो है अपने तौर पे इंडिपेंडेंटली अपनी स्पेशल ब्रांच या थोड़ा बहुत और सपोर्ट के इंटेलिजेंस एजेंसी की सपोर्ट के साथ वो खुद इंडिपेंडेंटली पंजाब में ऑपरेशन कर सकते हैं। हर हालत में रेंजर्स को सामने आना पड़ेगा, फौज पीछे होगी और पंजाब पुलिस और इंटेलिजेंस एजेंसी की सपोर्ट में होगी। तो लिहाजा ये तो होना ही होना है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ डॉक्टर साहब, देखें कितने अफसोस की बात है, हमने हाफिज सईद साहब को हाउस अरेस्ट किया, हमने इंडियन मूवीज पे बैन उठाया, सिर्फ इसलिए मैं ये समझता हूँ एज अ पाकिस्तानी कि हम इंडियंस को एक हेलो हाय का मैसेज दें, गुडी गुडी वाला मैसेज दें कि देखें जनाब हम आपको खुश कर रहे हैं। लेकिन क्या हुआ है आप देखें, उन्होंने कल 3 पाकिस्तानी सोल्जर्स को शहीद किया लाइन ऑफ कंट्रोल पे। अफगानिस्तान से पिछले 3 दिनों में दहशतगर्द आए हैं, उन्होंने एफसी की पोस्टों पे, आर्मी पोस्टों पे हमले किए हैं। फिर कल वाला ये हमला हुआ जिसके ताने बाने भी मिलते हैं अफगानिस्तान से, तरीके तालिबान से, और जारी बात है ये जब आर्मी चीफ कहते हैं कि ये इमीडिएट उनका ऑब्जेक्टिव है कि जी पीएसएल का फाइनल जो है उसको किया जाए अपना सबोटाज, तो कौन फायदा उठाएगा? इंडियंस को फायदा होगा ना, उन्हीं के इंटरेस्ट में कि पीएसएल का मैच पाकिस्तान लाहौर में ना हो सके। लेकिन ठीक है, ये चैलेंज है रियासत के लिए। नाउ सर पीएसएल का
जी, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ डॉक्टर साहब, जो ओवरऑल हालात है वो जाने नहीं बचती। जी, मैं ये कहता हूँ कि मैं ब्रेक में जाऊंगा, मैं ब्रेक में जाऊंगा, फिर आके बात करता हूँ। और मैं एक दफा फिर कहता हूँ, मैं कहता हूँ ये जब हम डिमांड करते हैं दहशतगर्दों के खिलाफ फौज एक्शन ले, तो फौज और कहती भी है, आर्मी चीफ के भी स्टेटमेंट है कि हम इकोनॉमिक टेररिज्म और जो भी दहशतगर्द है उनके खिलाफ पीछे जाएंगे, चाहे वो कहीं भी हो। तो सवाल ये पैदा होता है कि हमारा मुतालबा ये नहीं है कि पंजाब के सियासतदानों के खिलाफ एक्शन, हमारा ये मुतालबा नहीं है कि पंजाब के पार्लियामेंटेरियन के खिलाफ आप करें, हमारा ये मुतालबा नहीं है कि पंजाब की हुकूमत के खिलाफ, पंजाब में मौजूद जमहूरियत जो भी जमहूरियत है उनके खिलाफ। हम कहते हैं कि जो भी दहशतगर्द है जहाँ पे भी है, चाहे हुकूमत में हूँ, पार्लियामेंट में हूँ, घर में हूँ, रास्ते में हूँ, किसी अकूबत खाओं में हूँ, उनके खिलाफ एक्शन ले। मेरा एक सवाल है, मैं छोड़े जा रहा हूँ दोनों अपने मेहमानों के पास कि जब वजीरिस्तान का एक्शन हुआ था तो हमारे पास ये न्यूज है, आपको भी पता है, सारा पाकिस्तान जानता है, हुकूमत ने इजाजत नहीं दी थी, फौज ने डायरेक्ट एक्शन लिया था और उसके बाद में हुकूमत ने इसकी इजाजत दी या उसको कवर किया था। तो उस वक्त भी तो कानून था। दहशतगर्दों के खिलाफ आप वजीरिस्तान में जा सकते हैं, तो क्या दहशतगर्दों के खिलाफ आप कराची में आ सकते हैं? तो क्या दहशतगर्दों के खिलाफ आप पंजाब में नहीं जा सकते? इससे बहुत बुरा इम्पैक्ट जाता है, बहुत गलत बात सामने आती है कि पंजाब में ना तो पंजाब के लोग करप्शन करें तो उनके खिलाफ कोई इदारा जो है वो उनको कानून के पीछे, जेल के पीछे करे, और कोई अगर दहशतगर्दी में इन्वॉल्व हो तो उसके खिलाफ भी कोई कार्रवाई नहीं हो। ये मैसेज बहुत गलत जा रहा है। वजीरिस्तान में आप जा सकते हैं बगैर इजाजत, जो बात है सबके सामने है, सब लोग कहते हैं, मैं नहीं कह रहा, तो फिर आप पंजाब में और क्यों नहीं जा सकते हैं दहशतगर्दों के पीछे? एक छोटा सा ब्रेक, फिर वापस आते हैं।